Hello friends, welcome to this new learning episode. I am Bhushan Pathak from Seshai Option Scalpers. आज हम सेक्टर एनालिसिस के बारे में जानेंगे। सेक्टर्स कैसे ग्रो होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है। टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ these सेक्टर्स आर ग्रोइंग एंड हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स फ्रॉम ईच सेक्टर्स, व्हाट हैपेंड फॉर द डे एंड वीक्स एंड सो ऑन। सो ये देखिए, दिस इज ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी। टुडे I'm going for FTD, that is for the day view. Realty, media, PSU Bank, metal, IT. These are some sectors which have grown about to more than 1% to 1%. And out of them, if I click on this sector, I have my shares which have grown, the stocks which have grown more than 1-2% today. So DLF, Sunteck, Lodha, Oberoi, Godrej Properties, they have grown more than 1% today. And if I go to say another sector which is media here, Nazara, PVR Inox, Sun TV, Hathway, ये जो sectors है, ये जो shares हैं, stocks, they have grown in this media sector. And let's have a look at weekly view. So इस week में सितंबर के जो आज फ्राइडे क्लोज हुआ है वीक, उसमें देखिएगा FMCG 2.99, media 2.84, IT 2.76, bank 2.69, and Nifty Metal 2.29. Nifty mid cap select have grown 2.15 and 2.09 realty. So these some sectors which have grown more than 2% today, this week. And if I click on each sector, I'll get my stocks which have performed this week. So if you can see, the top performing sector for the week was FMCG, and in FMCG, Varun Beverages, Britannia, United Spirits, UBL, Godrej CP, Consumer Products, Hindustan Unilever, Tata Consumer. These have grown more than 3%. And if you don't like this graphical view, you can switch to tabular view, and tabular view will give you these details, the same detail with a better data. And here you can see the LTP and the volume as well. So ये क्या हो रहा था? And in this chart view, you have no visibility to volume, but in table view, you have a volume visibility also. So if I have to see here, I'm sorting this. The sector is realty. I'm sorting this. So ये देखिएगा. If I click on this realty, I'm sorting this with percentage change for the week. और ये जो DLF, Oberoi Realty, Sobha, Lodha, Godrej Properties, ये जो अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं, इसमें how to use them for buying. तो ये जो सेक्टर्स हैं, इसमें जो ग्रोथ हुई है, and if any there is a dip in these sectors next week and these stocks next week, अगर इसमें कोई dip आती है basis बाकी buying compliances, you can see a good buying opportunity in these stocks whenever they are falling without volume. So इस तरह से हम ये सेक्टर रोटेशन देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कौन से दिन में चल रहा है और किस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स जो है अच्छे चल रहे हैं। सो बजाय इसके कि आप स्कैनर रन करो और पूरी तरह से उनको ढूंढते रहो, तो स्कैनर के बजाय ये आपको एक अच्छा व्यू देता है। सो इफ आई गो टू वीकली एंड नाउ लेट्स गो टू मंथली। मंथली में भी चेक कर लेता हूँ मैं और मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ। सो सॉर्ट करने से क्या होगा, मैंने इसको डिसेंडिंग सॉर्ट किया है। सो the better performer stock is on top, the top performer is here on number 1, and the least performer or the loser sector or stock here at bottom. तो इससे क्या होगा कि मुझे टॉप सेक्टर जो है, टॉप परफॉर्मर पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे ऊपर में। तो इसकी एलटीपी थी, डे हाई इतना था, डे लो इतना था एफएमसीजी का, और इसके बाद ये जो स्टॉक्स इसमें अच्छे खासे चले हुए हैं ये आपको दिखाई देगा। एंड लुक एट दिस entire month for September, today is 13 September, Varun Beverages has grown by 7%. So सबसे ज्यादा जो तेजी दिखाई है वरुण बेवरेजेस, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दिखाई उसके बाद। और उसका वॉल्यूम भी देखिएगा, फॉर एंटायर मंथ वी हैव 19 lakhs वॉल्यूम, 71 lakhs का वॉल्यूम जो है वरुण बेवरेजेस में हुआ है। रेडिको भी अच्छा चला है, ऑलमोस्ट 5% अ मंथ। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो अच्छे खासे शेयर्स। और इसका अगर आप चार्ट देख लो, फॉर एग्जांपल ये मैं वरुण बेवरेजेस को मैं चार्ट इसका ऑन कर देता हूँ। सो इफ यू कैन सी दिस चार्ट, मैं डेली पे चला जाता हूँ। आई ऑलवेज एनालाइज ऑन हायर टाइम फ्रेम, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा वीकली पे भी देख लूँ, बिकॉज वी आर लुकिंग एट वीकली एंड मंथली ऑल्सो। तो देखिएगा काफी अच्छा खासा स्टॉक है, तेजी आई है इसमें और बुलिश स्टॉक है। एंड वेन एवर इट्स फॉलिंग इट इज गेटिंग बॉट। सो इसमें आप देख सकते हो कि अगर
थोड़ा सा आप सीख लीजिएगा कैसे और एंट्री करनी है, कैसे बाय करना है। एंड वी हैव आवर कोर्सेज ऑल्सो, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू नो मोर अबाउट बाइंग। पर ये देखिएगा, स्टॉक जब भी एक सपोर्ट लेवल पे आ जाता है इट इज गेटिंग बॉट, एंड दिस इज द वे यू कैन हैव अ लुक एट चार्ट एंड बाय गुड स्टॉक्स rather than scanning all of them together। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए यूनियन बेवरेजेस से मैरिको में चलते हैं। मैरिको 5% बढ़ा हुआ है। एंड लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। तो डेली में मैं आ गया, देखिएगा मैरिको अच्छा खासा स्टॉक है, और ये जब भी नीचे आता है ये बाय करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक एट लोअर लेवल। तो डू नॉट बाय, डू नॉट एंटर एनी स्टॉक ऑन टॉप। जब भी आप ये टॉप पे चला जाता है कभी भी उस पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। वेट फॉर सम कॉन्ट्रैक्शन, जब ये नीचे आ जाएगा रिट्रेसमेंट आ जाएगी, ये रिटेस्ट पे आता है सपोर्ट लेवल पे, उसे बाय करना ठीक हो जाता है। रादर देन आप ग्रीन कैंडल के टॉप पे एंट्री करते हो तो काफी बार देखो हम फंस जाते हैं। जो नए स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं वो क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल आ गई टॉप पे और उसको एंट्री कर ली यहाँ पे, आप जैसे स्टॉक बाय करते हो वो नीचे चला जाता है। ठीक है, और वो नीचे आ गया इसलिए ये रेड कैंडल देख के हम सेल करने लगते हैं। एंड समवेयर हियर यू गिव अप योर क्वांटिटीज, और जैसे ही आप बेचते हो ये ऊपर चला जाता है। राइट, ऐसा नए 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 जब हम एंटर करते हैं मार्केट में, नया नया बाइंग शुरू करते हैं तो ऐसा होता है। देखिएगा कि किसी ने मुझे बता दिया वो टॉप पे था अच्छा खासा, तब मैंने ले लिया, और वो नीचे आ गया, फिर मैंने उसको बेच दिया, लॉस में बेच दिया क्योंकि ये नीचे आने लगा, मैं डर गया, एंड आउट ऑफ माई फियर आई सोल्ड इट, एंड द मोमेंट आई सोल्ड इट स्टार्टेड गोइंग अप। तो हमेशा उल्टा हो जाता है, आप बेचते हो तो स्टॉक ऊपर चला जाता है, आप खरीदते हो बाय करते हो तो नीचे आ जाता है स्टॉक। ये अवॉइड करने के लिए आप बाइंग टेक्निक सीख लीजिएगा। बट मैं आपको तरीका ये बता रहा था कि स्टॉक्स में और मार्केट में कौन से सेक्टर अच्छे चल रहे हैं ये पहले ढूंढ लीजिएगा, सेक्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है वो ढूंढ लीजिएगा, और उसके बाद उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा कि इस ये अच्छा स्टॉक है तो ये मतलब रोज ही ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। राइट, तो उसे आप अच्छे टाइम पे अच्छे प्राइस पे बाय करिएगा, वेट करिएगा स्टॉक आपके प्राइस पे आ जाए। रोज रोज बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जैसे रोज मेला नहीं लगता वैसे ही रोज बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। बट अच्छे स्टॉक में अगर आप अच्छे लेवल पे एंट्री करते हो तो मार्केट में ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना काफी फायदेमंद साबित होता है। आज के मार्केट नगेट में इतना ही, और फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।